اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل شیعہ اور سنی کتابوں میں بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں آل محمد کے واقعات و کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اہل بیت خاندان پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے، جن کی طرف قرآن مجید کی آیت تطہیر اور آیت مودت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو انمول پھول حضرت امام حسن و امام حسین کے بچپن کے چند خوبصورت واقعات بتائیں گے کہ جن کو سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 15 رمضان 3 ہجری کو امام حسن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، اور اسی طرح امام حسین 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین اور امام حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام و حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حدیث شریف میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ آپ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام حسن اور امام حسین کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ حضرت امام حسن و امام حسین کی پرورش آقائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، سینے مبارک پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ ان سے محبت رکھو۔ لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں تھے کہ حسین علیہ السلام پشت مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام خود سے بے خوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے اس وقت سر سجدے سے اٹھایا۔ مسند احمد بن حنبل، المعجم الکبیر طبرانی، تاریخ ابن عساکر اور اہل تسنن کی دوسری کتب میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ جس کا نام قطر ہے، انہوں نے پروردگار عالم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اجازت مانگی۔ خداوند متعال نے اس فرشتے کو رسول خدا کے دیدار کی اجازت دے دی۔ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے، وہ فرشتہ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ رسول خدا نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ کسی کو ہماری مجلس میں داخل نہ ہونے دینا۔ ام سلمہ اس حال میں کھڑی تھی کہ دروازہ بند کریں، پس اچانک امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا اور وہ داخل ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لے کر بوسہ دیا اور شفقت و محبت کرنا شروع کر دی۔ اس فرشتے نے پوچھا، کیا آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت بہت جلد اسے قتل کر دے گی، اور فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں اسے قتل کیا جائے گا۔ حضرت محمد نے فرمایا ہاں، مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ اس فرشتے نے اپنے ہاتھوں کے اشارے کے ذریعے وہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ اس کے بعد تھوڑی سی سرخ مٹی لا کر دی۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے کر اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ اس جگہ کو کربلا کہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बहुत सी मिसालें हैं और हदीसें हैं। एक दिल पजीर हदीस गौर से सुने और अपने दिल को मोहब्बत हुसैन से भर लें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया, छोटा बच्चा कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े हुए आए और हजरत मोहम्मद की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां दाढ़ी मुबारक में दाखिल कर दी। हजूर ने उनका मुंह खोलकर बोसा लिया, फिर फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर शहादत उज़्मा तक आपके फज़ाइल में बहुत सी हदीसें मौजूद हैं। फिर जो दोनों शहजादों हजरत इमाम हसन व हजरत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के फज़ाइल में अहादीस करीमा के ज़ख़ीरे में मौजूद हैं, वो अलग हैं। अहले सुन्नत के बाज़ मनाबे में आया है कि रसूल खुदा अपने अहले बैत में से हसन व हुसैन को ज़्यादा चाहते थे और ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे होते थे तो खुतबे के दौरान इमाम हसन और इमाम हुसैन आ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे को अधूरा छोड़ते थे और मिंबर से उतरकर उन्हें अपनी गोद में ले लेते थे। दोस्तों, अब हम आपको इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बचपन का एक खूबसूरत वाक़या बताते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब उम्र मुबारक 2 साल की थी तो एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि इमाम हसन वहाँ पहुँचे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर बैठ जाते, कभी बालों से खेलते और कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर आकर सवार हो जाते, कभी गोद में लेट जाते, कभी दाएं कभी बाएं। ये सब देखकर हज़रत उन्स इब्न मालिक ने चाहा कि बच्चे को गोद में उठा लूं, चूँकि असहाब तशरीफ फरमा है। रसूल खुदा महवे गुफ्तगू थे, रसूल खुदा की गुफ्तगू से इस्तेफादा हो रहा था। तो जैसे ही उन्स बिन मालिक ने इमाम हसन मुज्तबा को उठाना चाहा तो रसूल खुदा ने फरमाया, ऐ उन्स, इसे छोड़ दो, मेरी गोद में ये जैसे रहे मुझे अच्छा लग रहा है। जब रसूल खुदा की गुफ्तगू खत्म हुई तो एक अराबी, बज़ाहिर तो वह बद्दू था, वो दाखिल हुआ और उसने कहा कि तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं मोहम्मद हूँ। उस अरबी बद्दू ने कहा कि आपने दावे नबुवत किया है, इसकी दलील क्या है? तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरी नबुवत पर 2 दलीलें हैं, एक तेरे बदन के आज़ा गवाही देंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और दूसरा रसूल खुदा ने फरमाया कि ये मेरा बच्चा हसन गवाह है। उस अरबी बद्दू ने जब इमाम हसन की तरफ निगाह की तो कहा कि ये बच्चा, ये मुझे क्या समझाएगा, ये क्या गवाही देगा? इमाम हसन ने 2 साल की उम्र में उस अरबी बद्दू की तरफ रुक करके फरमाया, तूने किसी बच्चे से बात नहीं की है बल्कि फकीह से बात कर रहा है। फकीह के बारे में बताता जाऊं कि फकीह आजकल के दौर में एक इंसान उस वक्त बनता है जब वो मुसलसल 50 साल इल्म हासिल करता रहे और इल्म की गहराई में पहुंच जाए। उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा ने उस अरबी बद्दू से फरमाया कि तू सरापे जहालत है और मेरे पास जहालत को दूर करने की शफा मौजूद है। उसके बाद इमाम हसन ने फरमाया, तू मुझसे सवाल करता रहेगा और मैं हर सवाल का जवाब देता रहूंगा और मेरी जबान से जारी होने वाली हिकमतों का ऐसा एक समंदर बनकर सामने आएगा जिसे डोलों से खाली नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा ने उस अरबी बद्दू से फरमाया कि तुम कल रात फलां जगह पर थे, तुम सब ने इज्तिमा किया था कि अब्दुल्ला के बेटे को कत्ल करना है, मेरे नाना को कत्ल करने के इरादे से तुम जमा हुए। उस वक्त किसी में जुर्अत नहीं हो रही थी ये कहने की कि मैं कत्ल कर पाऊंगा, मगर तुमने कहा कि मैं कत्ल करूंगा। और उस वक्त उस महफिल में पर्दे के पीछे कुछ औरतें बैठी हुई थी, जिनमें से एक खातून ने आवाज देकर कहा कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, मुस्तफा के बहुत चाहने वाले हैं। तब फिर तुम वहां से चले हो, तुम एक सिराहे में जाकर ठहरे जहां से तुम एक सवारी पर बैठकर जंगल से गुजरे और वहां तुम्हारी सवारी चलने से माजूर हो गई थी, तो तुम सवारी से उतरकर कुछ देर पैदल चले, फलां जगह पहुंचे तो झाड़ियों ने तुम्हारे कपड़ों को फाड़ा। उस वक्त अरबी बद्दू ने इमाम हसन से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन सारे वाकयात में मेरे साथ साथ थे, ये सारी बातें जो तुमने बताई हैं बिल्कुल सच हैं। उसके बाद वो अरबी बद्दू रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि जिसका नवासा ऐसा हो उसका नाना कैसा होगा। दोस्तों, अब हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन का एक खूबसूरत वाकया बताते हैं। अपने प्यारे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वआलैहि वसल्लम से रोजे के फजाइल सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन का पहला रोजा रख लिया, जबकि उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल थी। जोहर के वक्त नन्हे हुसैन जान पर प्यास का गलबा हुआ, ऐसा कि वो होंठ जिनको अल्लाह के रसूल चूमते थे प्यास से खुश्क हो गए। पाक माँ हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से नन्हे हुसैन की प्यास बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। आपने फरमाया, बेटा आप पर अभी रोजा वाजिब नहीं है, इफ्तार फरमा दीजिए। मगर नन्हे इमाम रोजा मुकम्मल करना चाह रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो नन्हे हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमगीन हुए, लेकिन अपनी मोहतरमा बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फरमाया, ऐ फातिमा, हुसैन को इसी हालत में छोड़ दो कि इन्हें प्यास बर्दाश्त करने की आदत हो जाए। इस अजीम घर के लिए मौजज़ात न होंगे तो किसके लिए होंगे। रिवायत कहती है कि हुक्म परवरदिगार हुआ, ऐ मलाइका, सूरज की तनाबे जल्दी खींचो कि मेरे हबीब का लाल प्यास से बेताब है। रिवायत में है कि जब वक्त अफ्तार हुआ और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ठंडे पानी का जाम नन्हे हुसैन को पेश फरमाया, लीजिए बेटा इफ्तार कीजिए। नन्हे हुसैन ने फरमाया, दस्तूर है जब बच्चे पहला रोजा रखते हैं तो बड़े उन्हें इनाम देते हैं और मेरा इनाम कहाँ है। हुसैन दहलवी लिखते हैं, पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इनाम में हौज़े कौसर दिया कि अपने ज़ायरों और रोने वालों को पिलाना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वो बाग अता फरमाया जो रसूल खुदा ने हदिया फरमाया था। जब माँ की बारी आई तो आपने वो 4 दरिया जो आपको हक महर में अता हुए थे, जीहून, सीहून, नील और फुरात अता फरमाए। रोने का मकाम तो ये कि जिस हुसैन की आधे दिन की प्यास प्यारे नाना, बाबा और अम्मा से बर्दाश्त न होती थी, वही हुसैन करबला में 3 दिन के प्यासे शहीद कर दिए गए। जब से दुनिया कायम है उस वक्त से लेकर आज की तारीख का अगर मुताला करें तो बहुत से वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह करबला की सरजमीन में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अपने जान निसारों के साथ हुई, इस तरह की मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। आपकी विलादत से लेकर शहादत तक के वाक़यात को पढ़कर इंसानी अकल दंग रह जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करबला भी कहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद करबला इमाम आली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारके अजीम हक व बातिल में फर्क करने वाली जंग करबला के दिन के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुद तरबियत फरमाई थी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते थे कि मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत के ओबाश हाकिम शहीद करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फरमाते थे, ऐ उम्मे सलमा, जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो यकीन कर लेना कि मेरा लख्ते जिगर शहीद किया गया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चों की परवरिश में लगे रहते। आप ही के गहवारे में हसन हुसैन परवान चढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा ही था कि आप इंतहाई आबिद व जाहिद और बहुत फजीलत के मालिक थे। मुसलमानों को चाहिए कि आपके बचपन से लेकर शहादत तक के वाक़यात अपने बच्चों और नई नस्लों को बताएं ताकि उनके दिलों में ईमानी हरारत पैदा हो और सच व हक पर चलने की तरगीब मिले। अल्लाह ताला हमें शहीदान करबला की तरह सच और हक पर चलने और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।